Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Forms of Market. First, we will learn what is market. Market refers to the whole region where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other to effect purchase and sale of the commodity. मार्केट क्या है? वो सारे जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं और वहां पे वो परचेज और सेल करते हैं गुड्स का, दैट प्लेस वी कॉल इट एज मार्केट. ठीक है. इट रिफर्स टू होल रीजन. मार्क द वर्ड होल रीजन. In normal terms, in normal life, we use market only the particular place. For example, civil lines is a market, chalk is a market. It means we are talking about the particular place. But in economics, market is not a particular place. It is the whole region where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other to effect purchase and sale of the commodity. Now, meaning and basic for classifying market structure. Market structure क्या है बेटा? It refers to the type of a market in which the number and the types of the firm operating in it. It means we indicates how the market is organized. Market structure क्या है? It indicates how the market is organized. Various markets are classified broadly on the basis of first, numbers of buyers and sellers, second, nature of commodity, third, freedom of movement of firms, fourth, knowledge of market conditions, fifth, mobility of goods and factors of production. Beta, these are the factors according to which we have divided the market in a different forms. Okay. Now, forms of market structure. First one is perfect competition and the second is imperfect competition. Imperfect competition contains monopoly, monopolistic competition, oligopoly, and first form of market structure which we are going to learn is perfect competition. What is perfect competition? It refers to the market situation where there are a very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a place fixed by the market. परफेक्ट कंपटीशन क्या है बेटा? वो मार्केट सिचुएशंस जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे डील कर रहे हैं. ठीक है. एंड द प्राइजेस आर फिक्स्ड इन द मार्केट इटसेल्फ. नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस. यहाँ पे कोई भी फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर पाती. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फर्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. इन्होंने क्या कहा? इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है. एंड दीज बायर्स एंड सेलर्स compete among themselves. Due to the large number, no buyer or seller influences the demand or supply in the market. क्योंकि large number था इसलिए कोई भी बायर या सेलर डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, चेंज नहीं कर पाता. ना डिमांड को बायर कर सकता है और ना सप्लाई को सेलर कर पाता है. It means that a firm under the perfect competition cannot influence the market price. इसका मतलब फर्म मार्केट प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं लेकर आ पाते. By increasing or decreasing the quantity of output it produces. चाहे वो कितनी भी सप्लाई को कम ज़्यादा करे अपने अकॉर्डिंगली, बट देयर आर सो मेनी सेलर्स कि मार्केट में उसका इफेक्ट बहुत कम होता है. A firm is therefore a price taker rather than a price maker. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बेटा. A firm is a price taker rather than a price maker. जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल हो रहा है, फर्म उसी प्राइस को फॉलो करती है, वो अपना प्राइस खुद बनाती नहीं है. Now, second function of perfect competition is free entry and exit. In a perfectly competitive market, there are no restriction on the entry of the new firm into the market or on the exit of the existing firm from the market. Perfect competitive competition में, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई भी फर्म मार्केट में आ सकती है और कोई भी फर्म मार्केट से जा सकती है. There is no restriction for entry and exit. Next point,
homogeneous product. Homogeneous product means same type of the product. Their characteristics, the features of the product are same. ठीक? In a perfectly competitive market, all the firms produce and supply the identical products. It means that the products of all the firms are the perfect substitutes to each other. It means जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के. As a result of this, the price elasticity of demand for a firm's product is infinite. इसलिए price elasticity of a demand curve कैसा होता है perfect competitive market का बेटा? Infinite. I hope these 3 points are clear. Now, fourth one, perfect knowledge. Buyers and sellers have a perfect knowledge of the quantity of stock of goods in the market and the condition of the market. Prices at which the transactions or sale or purchase are happening. It means buyers and sellers को पूरी knowledge होती है किस प्राइस पे गुड सेल हो रहा है, किस प्राइस पे बायर्स परचेज कर रहा है या किस प्राइस पे सेलर सेल कर रहा है या कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स मार्केट में प्रेजेंट है, ईच एंड एवरीथिंग. इसलिए कोई भी सेलर बायर से एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं कर पाता और कोई भी सेलर बायर को कम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स्ट्रा ज़्यादा प्राइस पे सेल नहीं कर पाएगा. फिफ्थ वन, perfect mobility of factors of production. In a perfectly competitive market, the factors of production are completely mobile, leading to factor price equalization throughout the market. इन्होंने क्या कहा? Perfect mobility of factors of production का मतलब क्या है? All the factors of production are completely mobile. मतलब they can take from one place to another. I hope all these points are clear. Now, the last point, absence of transport cost. Another feature of perfect competition is that the buyers and sellers incurs no transport cost in purchasing and selling of goods. इन्होंने एक और assumption लिया है कि perfect competition वो market है जहाँ पे transport cost apply नहीं होती है. ठीक है? It means there is no cost of transportation. And this assumption is very necessary बेटा क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल कर रहा है थ्रू आउट द मार्केट और वो तभी पॉसिबल है जब कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ भी एडअप नहीं हो. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर अबाउट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इट मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं and they are sellers are the price taker not a price maker. वो price taker है, price maker नहीं है. They all are selling the homogeneous product and there is no transport cost about the product and all the factors of production are perfectly mobile. I hope all these points are clear to everyone. Now, pure versus perfect competition. प्योर कंपटीशन क्या होता है बेटा और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? द कंपटीशन इज सेड टू बी प्योर व्हेन द फर्स्ट 3 कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज सैटिस्फाइड. इन्होंने क्या कहा? हम कंपटीशन को प्योर कब कहेंगे? जब फर्स्ट 3 कंडीशन सैटिस्फाइड हो रही हैं, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स हो. अगर ये सिर्फ ये 3 कंडीशंस हैं वहाँ पे, देन वी कॉल इट एज प्योर कंपटीशन. ठीक है? अगर वहाँ पे सारी 6 कंडीशंस जो हमने पढ़ी हैं पीछे वो प्रेजेंट है तब वो क्या कहलाती है? परफेक्ट कंपटीशन. आई होप दिस इज क्लियर. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोनोपोली मार्केट. Monopoly is derived from the 2 Greek words monos, which means single, and polos means a seller. It means monopoly Greek word से derived हुआ है बेटा, जिसमें monos means single and polis means a seller. Monopoly refers to a market situation where there is a single seller selling a product which has no close substitutes. It means monopoly वो market की situation है जहाँ पे एक ही seller है and that they are producing a single commodity which has no close substitutes. उसके कोई भी substitutes present नहीं है. Now, features of monopoly.
single seller, no close substitutes, restriction on entry and exit, price discrimination, and price maker. Now we are going to learn these features in detail. First one seller and large number of buyers. Monopoly is a market situation where there is only one seller or producer called monopolist. मोनोपोली वो मार्केट सिचुएशन है बेटा जहाँ पे एक ही सेलर है और उसको क्या बोला जाता है, मोनोपोलिस्ट. द मोनोपोलिस्ट फर्म इज द ओनली फर्म, इट इज एन इंडस्ट्री. एक ही फर्म है बेटा, बट द नंबर ऑफ बायर्स इज एज्यूम टू बी लार्ज. यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स क्या है, ज्यादा है. Second point, no close substitutes. There shall not be any close substitutes for the product sold by the monopolist. जो प्रोडक्ट सोल्ड होता है बेटा उसे कोई भी सब्सटीट्यूट्स प्रेजेंट नहीं है. द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट एंड अदर मस्ट बी नेग्लिजिबल और जीरो. इट मीन्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी उस प्रोडक्ट की, जीरो ही होगी. नाउ थर्ड वन, difficulty of entry of a new firm. There are either natural or artificial restrictions on the entry of the firm into the industry even when the firm is making abnormal profits. इन्होंने क्या कहा, मोनोपोली सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म की. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेट कर रही होती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, तो दूसरी फर्म्स कोशिश करती है ना बेटा वही सेम चीज प्रोड्यूस करने के लिए. एंड बट मोनोपोली मार्केट है, इट मीन्स देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री ऑफ द फर्म, तो कोई भी न्यू फर्म वहां पे एंटर नहीं कर सकती. फोर्थ वन, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोपोली का बेटा. अ मोनोपोलिस्ट मे चार्ज डिफरेंट प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर. मोनोपोलिस्ट क्या करता है, सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है कस्टमर से, अलग अलग कस्टमर से, फॉर द रीजन नॉट एसोसिएटेड विद डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग द प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंज्यूमर्स. दिस स्ट्रैटेजी इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. क्यों ऐसा करता है, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग. मतलब दोनों को जब गुड सप्लाई हो रहा है तो उसकी कॉस्ट अलग पड़ रही है, उसकी कॉस्ट अलग, ऐसा कुछ नहीं है. टू डिफरेंट कंज्यूमर्स, इस स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. दे मे आस्क यू व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन अ शॉर्ट ऑल्सो. ठीक है. Fifth point, price maker. Under monopoly, monopolist has full control over the supply of the commodity. Monopoly का पूरा कंट्रोल होता है supply of the commodity में बेटा. क्यों, क्योंकि वो एक अकेला ही सेलर है. But due to large number of buyers, demand of any one buyer constitutes an infinite small part of the total demand. But demand में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं. एक बायर अगर चला जाता है तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी इतनी ज़्यादा वो मार्केट में डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगी बिकॉज देयर आर स्टिल मेनी बायर्स आर देयर. देयरफॉर बायर्स हैव टू पे द प्राइस फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस्ट. इसलिए बायर्स वही प्राइस पे करना पड़ता है जो मोनोपोली फिक्स करता है. आई होप ऑल दीज फीचर्स आर क्लियर. नाउ we are going to learn about monopolistic competition. This is a third form of market. Monopolistic competition is a type of imperfect competition such that there are many producers competing against each other, but selling products that are differentiated from one another by branding or quality and hence are not perfect substitutes. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेटा वो मार्केट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं एंड ऑल आर कंपीटिंग विथ ईच अदर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. ठीक है, दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स बट विद डिफरेंट फीचर्स, विद डिफरेंट क्वालिटी एंड हेंस दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर. इन एक्चुअल में बेटा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट ही लाई करती है. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली वो मार्केट इन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करती है. इन एक्चुअल कौन सी मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट. ठीक है. मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस. फर्स्ट वन,
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इन्होंने क्या कहा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं बट नॉट एज लार्ज एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पर वो इतने लार्ज भी नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं मार्केट में। दैट मीन्स ईच फर्म कैन कंट्रोल इट्स प्राइस आउटपुट पॉलिसी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए कहा गया इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं है जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सेलर्स हैं दे कैन नॉट कंट्रोल द प्राइस, बट इन अ मोनोपोलिस्टिक competition they can control the price to some extent. It is assumed that any price output policy of the firm will not get reaction from the other firms. That means each firm follows that independent price policy. हर एक फर्म अपनी प्राइस पॉलिसी फॉलो करती है. Second point, free entry and exit of firms. Like perfect competition, under monopolistic competition also the firms can enter or exit freely. जैसे परफेक्ट कंपटीशन का बेटा हमने फीचर पढ़ा था, देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है. ठीक है. द फर्म्स विल एंटर व्हेन द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. जब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होंगे तो दूसरी फर्म्स एंटर करेंगी. व्हेन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स द सप्लाई वुड इंक्रीज विच वुड रिड्यूस द प्राइस एंड हेंस द एग्जिस्टिंग फर्म्स विल बी लेफ्ट ओनली विद द नॉर्मल प्रॉफिट्स. और जब न्यू फर्म्स आ जाएंगी तो सप्लाई और इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, है ना. तो जो एग्जिस्टिंग फर्म, जो फर्म पहले से थी, उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे. सिमिलरली अगर एग्जिस्टिंग फर्म को लॉस हो रहा है तो वो एग्जिट भी कर जाती है, जिससे सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, हाँ, और प्राइस राइज हो जाती है. तो एग्जिस्टिंग फर्म्स जो लेफ्ट होती हैं उनको क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन होता है. तो मोनोपोलिस्टिक में free entry and exit of firms is same as a perfect competitive market. Third point, product differentiation. Another feature of monopolistic competition is the product differentiation. ये भी most important है, ये short में अलग से point पूछा जाता है बेटा. Under monopolistic competition, firm produces differentiated products. Basically, the product of different firms are not altogether different. They are slightly different from others. इन्होंने क्या कहा? They are producing the different products, but they are not at all together different. Not altogether different मतलब पूरा पूरा perfect substitute नहीं है. ठीक है. Product produced by different firms are substitutes for each other but not a perfect substitute. मतलब exactly same नहीं है. Products may be differentiated firstly on the basis of the physical characteristics of the product, secondly on the basis of the conditions surrounding the sale of the product. Products अलग हो सकते हैं उनके physical features और उनकी sales के related. ठीक है. It means फॉर एग्जाम्पल हम बेटा यहाँ पे ले सकते हैं, इफ वी आर यूजिंग और वी विल गो टू द मार्केट टू बाय अ शैम्पू. ठीक है. शैम्पू आप हेड एंड शोल्डर्स ले रहे हो, आप सनसिल्क ले रहे हो, ट्रेसमे ले रहे हो. दे ऑल आर डूइंग द सेम वर्क, दैट इज इट हेल्प्स टू वॉश योर हेयर्स, बट उनके फीचर्स अलग अलग हैं, है ना. इट मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट्स बट नॉट perfect substitute for each other. That is product differentiation. Next, selling cost. Another feature of monopolistic competition is that every firm tries to promote its product by different types of expenditure. Monopolistic competition में बेटा selling cost matter करती है. ठीक है. यहाँ पे प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स को सेल करने के लिए दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर. एंड हाउ दे विल इन्फ्लुएंस इट, वो कस्टमर्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, बाय एडवर्टाइजमेंट विच अफेक्ट्स द डिमांड एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. द मेन पर्पस ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, देयरफॉर ही एडजस्ट दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली. और मोनोपोलिस्ट का मेन पर्पस प्रॉफिट्स अर्न करना है, तो वो ये एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग करती है. नाउ फिफ्थ वन, प्राइसिंग डिसीजन. अ फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ प्राइस मेकर. मोनोपोलिस्टिक में वो प्राइस मेकर है.
ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग अ यूनिक प्रोडक्ट और इस्टेब्लिशिंग अ पर्टिकुलर रेपुटेशन ईच फर्म हैज़ अ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक प्रोडक्ट सेल करता है, उसकी प्रोडक्ट की अलग रेपुटेशन है मार्केट में। इट मीन्स दे हैव अ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। The extent of power to control price depends upon how strategy the buyers are attached to his brand. और कितनी उसके पास कंट्रोल है प्राइस का, ये डिपेंड करता है बायर्स की स्ट्रैटेजीज पे। नेक्स्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Non-price competition refers to competing with other firms by offering free gifts, making favorable credit terms, etc., without changing prices of their own products. Firms under the monopolistic competition compete in a number of ways to attract the customers. They use non-price competition to promote their sales. बेटा, यहाँ पे वो प्राइस से compete नहीं करते, उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट्स प्रोवाइड करके, अलग से क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके अपने कंपटीशन को मीट करते हैं। यहाँ पे उसके प्राइजेस कम है, हमारे प्राइजेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे ये कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।